Hello, Bacha Party. Once again, welcome to Biomagnite YouTube channel. And today we start the new concept, carbon resistance, which is very easy topic and which is very important for your examination. 1 mark side question has selected from this topic. So very easy topic concept to based on the color code. Okay, means we can say that carbon resistance is totally based on the color code. But how color code? Discuss about this in lecture. So please watch to video till then, learn the whole concept, because this channel is providing you the latest lecture of the physics, maths and English. If you are the students of UP board, then visit my lectures name of maths, physics and English. You will get the easily content out there. Okay, so any topic, and here we start the topic carbon resistance. This lecture is especially for CBSE board students, so UP board students ignore it. And if you are of the students of CBSE board, so please focus on this topic, carbon resistance. Dear students, in the daily life we use the resistance, but their resistance is very short range, just like as a 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, etc. But in factory, in industrial field, if we enter in industrial field, then we do the resistance of high range, wide range, just like as a kilo ohm. So that resistance is called what? Carbon resistance. Are you understanding my point? In factory, short range resistance is not used. Wide range resistance is used in factory. Their values in terms of 10 power 3, 10 power 4, 10 power 5, 10 power 6, kilo ohm, mega ohm, means wide range. Here we are right. It is used in factory having wide range, just like as a kilo ohm and also mega ohm. Here we write mega ohm. Why this is used? Their size is very small. And it is not costly. Very cheap. And what? Size small. Its working process is based on color code. How color code? Before to start the color code, we discuss about its structure. Okay, its structure. Dear student, it consists of cylindrical part such that like this. Okay, this is our cylindrical part, and here given 4 ring. 4 ring. Their name is A, B, C and also D. Suppose that this is what carbon resistance. Here given 4 ring, 4 color की एक ऐसे पॉलिश हुआ रहेगा, 1, 2, 3 and also 4. Okay, so here color used. कितने कलर है सब आपको बताएंगे अभी. ए बी सी पे कलर यूज होगा, बट डियर डी पे क्या होता है? या तो वो सिल्वर की पॉलिश होगी, या तो फिर वो गोल्ड की पॉलिश होगी. किसका? गोल्ड का होगा, या तो फिर अदर कलर हो सकता है. अदर कलर मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं डियर कि इन पे ए बी और सी पे अदर कलर होता है. इनको छोड़ दो, सिल्वर, गोल्ड, अदर कलर या फिर यहां पे होता है बॉडी कलर. कैसा? ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया डियर. अभी बहुत इजी आएगा. अभी देखना तो पूरी एक बार पूरा लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, फिर मजा आ जाएगा आपको. बट अभी थोड़ा अजीब टाइप्स का लग रहा है, बट वास्तव में लास्ट में जब देखेंगे आप ना, तुरंत कर ले जाएंगे. अब इसमें कलर नेम क्या है? कलर्स नेम देखो, कलर्स नेम क्या है? इसमें टोटल अगर देखा जाए
टोटल अगर देखा जाए तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, देखिए ध्यान से कितना कलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक ब्राउन रेड, यहां पे नेक्स्ट ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू। क्लियर? क्या क्या हो गया? ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू वायलेट, वायलेट, ग्रे, और लास्ट में होता है व्हाइट। ये इतने कलर हैं जो यूज्ड होते हैं। कौन कौन से हैं? ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, वायलेट होगा, ग्रे होगा, और कौन होगा? व्हाइट। इतने कलर्स हैं। इतने कलर्स की पॉलिश डीआर किस पे होता है? ए बी सी पे होता है। ये जो कलर्स लगेंगे कहां पे लगेंगे? ए बी सी और डी पे, सॉरी ए बी और सी पे, डी पे नहीं। डी पे ये 3 कलर्स हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो डियर अगर ब्लैक कलर का हुआ है तो उसके लिए कोड 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 होता है कोड, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 6 7 8 एंड 9। ये सब किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की है ना। अगर ए पे ये कलर हो गया तो इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वैल्यू कितना हो गया? 0। रेड कलर हो गया तो 2 हो जाएगा। ये सब कलर जितने भी कलर्स आएंगे सब होगा। क्लियर? यहां पे जो डी होता है, डी को हम बोलते हैं टॉलरेंस। कुछ एरर होता है ना, वही एरर निकालना रहता है, कुछ एरर होगा, टॉलरेंस। तो अगर डी की वैल्यू डियर गोल्ड है तो इसके लिए 5% होता है, सिल्वर है 10%, अदर कलर के लिए कितना होता है? 20%। अब इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला R इक्वल टू AB मल्टीप्लाई 10 पावर C प्लस माइनस D%, इतना ओम। ये है फॉर्मूला रेसिस्टेंस निकालने का। ये क्या है? एक फार्मूला है। तो डियर सबसे पहले आप क्या करिए? सबसे पहले आप इतना नोट करिए, फिर से मैं समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, इस टॉपिक को क्लियर करिए। हमने क्या कहा कि कार्बन रेसिस्टेंस होता है, ये फैक्ट्री में यूज होता है, ये बहुत सस्ता होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, और जो अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं तो इसका वैल्यू जो होगा किलो ओम में होगा, मेगा ओम होगा, और ये जो वर्क करता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलर कोड। कलर के माने नाम बताया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। अभी सब आपको क्लियर कराएंगे, है ना। बस आप लेक्चर को लास्ट देख लीजिए। ये एबीसी की वैल्यू है। हमने कहा कि इस पे कलर होता है बट डी पे कलर नहीं होगा। वो कौन सा होगा? सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर बॉडी कलर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं डियर? टॉलरेंस बोलते हैं। तो अगर सिल्वर है तो डी की वैल्यू 10% हो जाएगा, अगर गोल्ड है तो 5% हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अदर कलर आपको मिल रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर? 20% हो जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो प्लीज क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए। फिर आपको मैं एक एग्जांपल से करवाता हूं क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इन सबको मैं इरेज कर देता हूं, बट कलर्स का नाम तो नहीं मिटाऊंगा अभी मैं, कलर का नाम नहीं मिटाऊंगा। ये भी कहानी खत्म। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपका जो कलर है, जो पॉलिश हुआ है कलर का, वो ऐसे हुआ है। पहले पे रेड हो गया, दूसरे पे ब्लैक हो गया,
और तीसरे पे ऑरेंज हो गया। ब्लैक, रेड है, ब्लैक है और ऑरेंज है, और लास्ट में आपको गोल्ड कलर दिया है। तो आपको ये पता है कि ये ए होता है, यहां पे बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पे क्या हो गया, डी। आपको फॉर्मूला क्या क्लियर है? आर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई 10 पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस बाय विच वी गेट द आंसर ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस। तो यार रेड के लिए ए है, तो ए पे रेड है, रेड का कोड कितना है? 2 है, 2। ब्लैक है, ब्लैक का कोड कितना है? 0 है। और सी का कोड कितना है? ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड 3 है। यहां से देखो कोड कितना 3 है, और गोल्ड के लिए क्या होता है? 5%। तो जस्ट वैल्यू रख दो ना। यहाँ पे ए का कितना है? 2, बी का कितना है? 0, 10 पावर सी कितना है? 3, प्लस माइनस व्हाट परसेंट? 5%, 10। इसके बाद आंसर। बट ध्यान देना यहां पे आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना, मल्टीप्लाई नहीं कराना। मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएंगे आप आराम से, मल्टीप्लाई कराएंगे चले जाएंगे आप, आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा। बहुत आसान है ना। तो फिर से क्वेश्चन और देखते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जो हमारा टॉपिक है। इसके बाद का मैं इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिक पावर, दोनों को एक साथ लेकर के सी मिटा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट, सपोज दैट येलो हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, और यहां पे सिल्वर दे दिया। तो आपको पता यार ए होता है, ये बी होगा, ये सी हो जाएगा और डी। तो ए पे येलो है, येलो का कोड कितना है? 4 है। ग्रीन 5 हो गया। सी पे कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है, व्हाइट का कितना है? 9 है। सिल्वर में कितना होता है? 10%। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, आर इक्वल टू ए बी इंटू 10 प्लस सी प्लस माइनस, ओके, डी परसेंट। नाउ हियर ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर सी, सी कितना है? प्लस माइनस डी 10%। ये रहा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आया? कुछ करना नहीं, आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लेकर दे बैठेंगे, लोचा हो जाएगा बहुत बड़ा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं कराना है। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है वो ये बनती है कि सर कलर कोड कैसे याद करें? कलर नहीं याद होगा, कलर आगे पीछे हो जाएगा। सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम आपका यहीं पे आएगा, किसके कलर कोड को कैसे लर्न करें, कलर कोड को कैसे लर्न करें। तो उसका मैं वे बता रहा हूं डियर, बहुत ध्यान से देखना भाई। उसका मैं कलर कोड बता रहा हूं ट्रिक से। तो उसका ट्रिक पहले आप लर्न करेंगे क्या? बीबी रॉय, मैं पूरा यहां से राइट करता हूं, बी बी रॉय, गुड बॉय, बेबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। देखिए एक कलर आपको यहां पे मिल गया, एक यहां पे सभी कलर है, सब कलर है। और एक कलर आपको यहां पे मिल गया, एक कलर यहां पे मिल गया, एक कलर यहां से मिला, एक कलर यहां से, और एक कलर टोटल काउंट कर लो 10 कलर होंगे। 2, 3 to 5 to 7, 8, 9, 10। हियर गिवन 10 कलर। तो व्हाट मिला है? बेबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ये क्या हो गया? इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बट लर्न कर लो। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। अगेन रिपीट हियर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो।
ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड ऑल्सो हियर व्हाट, व्हाइट। तो लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर यू अंडरस्टैंड। आपको ऐसे कलर्स के नेम याद नहीं होंगे, बट हाँ अगर आप ऐसे समझ लेते हैं तो ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। तो आपको ऐसे समझना है। तो बीबी राय, गुड बाय, वेरी गुड बाय, वेरी एग्जाम्पल की फॉर टू अंडरस्टैंड द, फॉर टू लर्न अ कलर कोड। ओके, सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड ऑल्सो व्हाइट। सो प्लीज नोट डाउन, इसको क्या करिए, नोट करिए और डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। बहुत इजी टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि वहां से ज्यादा कुछ पूछने वाला मैटर है नहीं। सो प्लीज नोट डाउन इट। Now discuss about the students electric energy. What is the electric energy? Because this is the best tools for to solve the numericals for class 10 student and class 12. अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर कोई क्लास 10 12th में है तो उसके लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लास 10 के लिए कंपल्सरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12 को तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समझना तो है ही, सिलेबस में आएगा तो पढ़ाया जाएगा आपको। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई के ऐसे वायर मैंने दे दिया, वायर का रेसिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है आर, और इसको मैंने करंट करा दिया एक बैटरी से या सेल से, अब की को क्लोज कर दिया। तो एक बात सुनो ध्यान से, अगर इसका मैं रेसिस्टेंस 0 कर दूंगा तो इसमें करंट बहुत तेजी से फास्ट फ्लो होगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं डियर सुपर कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कभी भी कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 होता है। तो होता क्या है कि जब आप इस सेल को इस किसी करंट कर देंगे, वायर से जोड़ देंगे, तो यहां से इसको क्लोज करने पर, क्या करने पर, क्लोज करने पर करंट फ्लो होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि करंट सीधे फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने में कुछ अपोजिशन आएगा, और वो अपोजिशन करेगा कौन, रेसिस्टेंस। तो जब ये रेसिस्टेंस, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है। तो जब रेसिस्टेंस अपोज करेगा तो सेल क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। सेल क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। क्या करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्टेंस में फ्लो करने के लिए, वायर में फ्लो करने के लिए। तो जो ये सेल वर्क डन कर रहा है रेसिस्टेंस के अपोज, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जो ये वर्क डन कर रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर कॉन्सेप्ट। सो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसका सिंपल डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। क्या होता है डियर, डब्ल्यू इक्वल टू V इंटू क्यू, और इसके बाद Q इक्वल टू होता है IT। तो यहां पे रख दीजिए डब्ल्यू इक्वल टू VIT। एक फार्मूला यहां पे बन के और आ गया। अब फिर क्या होता है कि V इक्वल टू IR, तो यहां पे वैल्यू रख दो फिर IR इंटू IT। तो W का टू क्या आ गया फिर, I स्क्वायर RT। अब फिर I स्क्वायर टू V अपॉन R। तो यहां से डियर अगर आप I स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू फिर रख दो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। फिनिश। सो W का टू आ गया V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस प्रकार से हम यहां पे देख सकते हैं। इसको मैं एनर्जी कर दूं, कोई मतलब नहीं है, नोटबुक में लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, नोटबुक में आप इसको राइट भी कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे फार्मूले मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैं राइट करना चाहूँ W इक्वल टू क्या हो गया सर, वी क्यू
यहाँ पे इसके बाद वी आई टी, इसके बाद आई स्क्वायर आर टी, इसके बाद क्या हुआ, ये वाला फार्मूला वी स्क्वायर टी। बट थोड़ा ध्यान देना यार, ध्यान क्या देना है कि सभी के सभी इन टर्म्स ऑफ जूल है, इन टर्म्स ऑफ जूल, सभी के सभी जूल के पदों में है। बट अगर आप कैलोरी में चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी के टर्म में लेकर आओ तो क्या होगा, W इक्वल टू VQ अपॉन 4.2 इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R। ऐसा क्यों हो गया भाई, क्योंकि आपको पता है कि यार एक कैलोरी में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहां से अगर 1 जूल निकालना चाहोगे तो 1 अपान 4.2 कैलोरी होगा। तो 1 जूल के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, रख दिया था 1 अपान 4.2 कैलोरी। तो ये किसके टर्म में आ गए, कैलोरी के टर्म में आ गया। बहुत इजी यार, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि सेल या बैटरी करंट को फ्लो कराने में जो भी वर्धन करता है, और क्यों वर्धन करता है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। रेसिस्टेंस क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, और जब रेसिस्टेंस अपोज करेगा तो वर्धन जाहिर सी बात है, होना तो है ही भाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं डियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतने फार्मूले आए, आप इसको ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड करिए। नाउ डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पावर। आप देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, समझना है इलेक्ट्रिक पावर को भी आपको। क्लियर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इसको पहले इरेज कर दें, हम नोट कर लिए होगे। ओके, सो इरेज करने के बाद देखिए इलेक्ट्रिक पावर, जब भी इलेक्ट्रिक पावर की बात होती है तो आपके दिमाग में उठता है कि 2.5 किलो का हाथ। बट यहाँ पे 2.5 किलो के हाथ की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात कुछ और ही है। यहाँ पे पावर का मतलब ये होता है ना कि कौन सी डिवाइस कितने समय में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है। समझ में आई बात। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ही है यार, पावर का मतलब ही है कि कितने टाइम में कितना एनर्जी उसकी कंज्यूम होगी। कोई मशीन है, उसकी पावर कैसे निकाल पाओगे, जब आपको ये दे दिया जाए कि उसकी टाइम कितना है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दिया, तो उसकी एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम होती है, जैसे हम 1 आवर में कितनी एनर्जी लॉस करेंगे, 1 आवर में कितनी एनर्जी लॉस करेंगे, उसी का रेशियो कर लीजिए, दैट इज व्हाट पावर। तो क्लास फिलहाल ज्यादा पता की जरूरत नहीं, क्लास 9th में आप लोगों ने रेड किया होगा, क्लास 9 में रेड किया होगा, क्लास 10th में रेड किया होगा ना। तो क्लास 10 में किसी अगर देख रहे हैं तो क्लास 10 में कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनिए ध्यान से। तो द रेट एट विच पावर इज, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसके अगर मैं यूनिट की बात कर दूं, सॉरी सिंबल की बात करूं पहले, इसका सिंबल देखो पहले, इसका सिंबल P होता है, इसका सिंबल क्या होगा, P, एंड P इक्वल टू होता है डियर W अपॉन T। प्यारा सा। अब इसके बाद फिर देखो W इक्वल टू, अभी आपने क्या लर्न किया था, VIT अपॉन T। VIT हो गया था ना, TT फिनिश। सो P इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू आई।
अब फिर V इक्वल टू आई आर, सो P इक्वल टू क्या हो गया, आई आर इंटू आई, सो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब फिर देखो, अब आई स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे अब क्या आएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये सब है इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले। अब इसका यूनिट देख लो, इसका जो यूनिट होता है ना भैया, इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड होगा, जूल पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं वाट। कुछ अदर यूनिट हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ इसके अदर यूनिट भी है। कौन है, एचपी है, और कौन है, एमपी। एचपी का मतलब हार्स पावर, एचपी का मतलब हार्स पावर, एमपी का मतलब मीट्रिक पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एचपी में कितना होता होगा, वन एचपी में कितना होगा, वन एचपी में डियर 746 होता है, इतना वाट, इसमें 735। अब एक बात और सुनो, दिमाग लगाना है। मैं बोलूं कि 1 किलोवाट कितना होगा, तो क्या कहेंगे सर, 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट में डियर कितना होता है, 10⁻³ वाट। तो इतना इंफॉर्मेशन नोट करिए। तब हम थोड़ा बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि यहां से देखो एक यूनिट और बन रहा है डब्ल्यू का, वाट इंटू आवर या फिर वाट इंटू सेकेंड। थोड़ा इस पर भी हम बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जल्दी से क्या करें, इसको पहले नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आप लोग घरों में बहुत देखते होंगे कि हम जो बिजली यूज करते हैं उसको कभी जूल में नहीं मेजर करते हैं। अब जूल में मेजर क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो यार, उसमें 1 जूल 2 जूल 3 जूल नहीं आता है, उसमें किलो जूल आता है, 10 पावर समथिंग जूल ऐसे से आएगा। तो वहां पे जूल नहीं मेजर करते, वहां पे एक नए टाइप्स का यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं किलो वाट आवर। क्या, किलो वाट आवर। कैसे आया, बिकॉज पी इक्वल टू होता है W/T। आपको क्या पता है कि पी इक्वल टू होता है W/T, यहां से W इक्वल टू कितना हो जाएगा, P × T। पी सपोज दैट वाट है, पावर वाट हो गया, ये सेकंड में हो गया। जब इसको किलोवाट कर दो तो इसको मैंने क्या कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये वर्क का ही यूनिट बन रहा है, तो किलोवाट आवर होगा। और किलोवाट आवर वो एनर्जी होती है कि जो 1 आवर में डिसिपेटेड होती है। कितने आवर में, 1 आवर में डिसिपेटेड होती है, बट उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 किलो वाट। कितना, 1 किलो वाट। क्लियर। तो यहां पे तो 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। तो डियर, इसको थोड़ा पहले मैं साइड वाले रेस कर देता हूं, जैसे आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए अब ये 1 किलो वाट आवर में कितना होगा, 10⁻³ वाट, और इसमें कितना सेकंड होगा, 3600 सेकंड। अब इसको इधर लेकर आओ, 3600 इंटू 10⁻³ वाट सेकंड
वाट सेकेंड। तो इसको अगर सेट करना चाहें तो हम सेट कर सकते हैं 3.6 10 पावर 6। तो यहां पे 1 kWh ये इसका सिंबल है, 1 kWh का किलोवाट आवर। तो यहां पे इसको बोलते हैं डियर जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अगर किसी इलेक्ट्रिकल मशीन से 1 आवर में इतनी एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है, 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी होती है कि इसके इक्वल होगी। और अगर इतनी एनर्जी 1 आवर में डिसिपेटेड हो रही है 1 किलोवाट वाले मशीन से, तो इसका मतलब एनर्जी कितना हो गया उसका? 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो 1 आवर में डिसिपेट होती है। कब? जब मशीन की पावर 1 आवर 1 किलोवाट हो। तो यहां पर ऐड करेंगे 1 किलोवाट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which dissipated in 1 hour if the power of machine is, क्योंकि मशीन ही काम करेगा, पावर ऑफ मशीन इज 1 किलोवाट। अगर मशीन की पावर 1 किलोवाट हो और अगर वो 1 आवर तक चलाया जाए तो उसी को हम बोलते हैं डियर 1 किलोवाट। और इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं डियर 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? कहते हैं बिजली को हम यूनिट में मेजर करते हैं, कितना यूनिट है कितना यूनिट नहीं है, तो यूनिट बोलते हैं। अब एक फार्मूला है, आप मैं कर रहा हूं यूनिट निकालने का तरीका। कितना यूनिट आया, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे? इसका तरीका है वाट मल्टीप्लाई बाई आवर मल्टीप्लाई बाई डे और मल्टीप्लाई बाई अप्लियंस। कितने अप्लियंस लगे हुए हैं उन इसको मल्टीप्लाई करा के 1000 से डिवाइड कर दो, तो इससे पता चल जाता है कि आपके घर में कितनी बिजली खर्च हुई। कैसे? वाट मल्टीप्लाई बाई आवर मल्टीप्लाई बाई डे मल्टीप्लाई बाई अप्लियंस अपॉन 1000। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपके घर में बिजली कितना खर्च हुआ उतने दिन के अंदर। अब आपसे जब कॉस्ट पूछता है तो 1 यूनिट का जितना भी रेट रहता होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करा दो, उतनी बिजली का बिल आएगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट रहा होगा, डाउट अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।